નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, લોકમંચમાં આપનું સ્વાગત છે। લોકમંચમાં આજે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ કેવા વિષય પર। આમાં ખાસ આપણે વિષયની સાથે સાથે વ્યક્તિ વિશેષની પણ વાત કરીશું અને એક ઘટનાને લઈને પણ ચર્ચા કરીશું। એટલા માટે કે 2008નો એક ઘટનાક્રમ જોવા મળ્યો કે સિરિયલ બોમ્બ બ્લાસ્ટ અમદાવાદમાં જોવા મળ્યા અને અમદાવાદમાં જ્યારે આ સિરિયલ બ્લાસ્ટ થયો તેને ઘણો સમય વીતી ગયો છે, પણ ત્યારબાદ પણ આ ઘટનાની સાથે સંકળાયેલ એવી કોઈ સ્ટોરી સાથે એક ફિલ્મ આવી રહી છે જે સપ્ટેમ્બર મહિનામાં પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે નહીં છે 8મી સપ્ટેમ્બરે, કે જેનું ફિલ્મનું નામ છે સમીર। નામ એક વ્યક્તિ વિષય પર આપવામાં આવ્યું છે, પરંતુ 2008ની આ ઘટના સાથે સંકળાયેલી સ્ટોરી આપણે કહી શકીએ, એક ફિક્શન કહેવામાં આવી રહ્યું છે, પણ એ એક સસ્પેન્સ મૂવી જોવા મળી શકે છે આપણને। અને તેને લઈને ચર્ચા એટલા માટે કરી રહ્યા છે કે ઘણી વિવાદિત ફિલ્મ આવી છે કે જેની ચર્ચા ઉઠી છે, કાં તો ઘણી એવી ફિલ્મ બની છે કે જે વિવાદમાં સપડાયેલી છે। આ પ્રકારની ઘટના આપણને ઘણીવાર જોવા મળી છે અને સાથે અત્યારે ચર્ચા કરી રહ્યા છે ત્યારે ઓલ ઓવર ભારતની અંદર આ ફિલ્મ 8મી સપ્ટેમ્બરે રિલીઝ થશે। સમીર નામની આ ફિલ્મ છે, અમદાવાદમાંથી જ જે સ્ટોરી બતાવવામાં આવી છે તેમાં આખા ફિલ્મની અંદર કદાચ આપણે એવું કહી શકીએ છીએ કે ખાલી અમદાવાદ પર આધારિત અથવા તો અમદાવાદનો જ સિનેરિયો બતાવવામાં આવ્યો છે અને તેવી આ ફિલ્મ સમીર જે રિલીઝ થવાની છે તેને લઈને ચર્ચા કરી રહ્યા છે। અને આપણે ખાસ જણાવી દઈએ કે અત્યારે અમદાવાદની મુલાકાતે આ ફિલ્મના પ્રમોશન માટે આવ્યા છે ત્યાંના ફિલ્મના સ્ટારકાસ્ટ ડાયરેક્ટર, અને સાથે આપણે એ પણ માહિતી આપી દઈએ કે સીમા બિસ્વાસ એક એવું નામ કે જે સૌથી વધારે બોલિવૂડની અંદર બેન્ડિટ ક્વીન તરીકે પ્રસિદ્ધ થયું અને બેન્ડિટ ક્વીન પછી ઘણી બધી ફિલ્મોમાં પણ સીમા બિસ્વાસ પોતાની કલાકારી બતાવતા આવ્યા છે અને તેવા સીમા બિસ્વાસ અત્યારે બોલિવૂડના જાણીતી અભિનેત્રી કહી શકાય તેઓ અત્યારે અમારી સાથે સ્ટુડિયોમાં છે। सीमाजी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। અને ફિલ્મના ડાયરેક્ટર દક્ષિણ છારા કે જેઓ મારી સાથે ચર્ચામાં ઉપસ્થિત છે, આપનું પણ સ્વાગત છે દક્ષિણજી। થેન્ક યુ। દક્ષિણજી, સૌથી પહેલા તો આપણે કદાચ હું ગુજરાતીમાં પૂછીશ કારણ કે સીમાજી કદાચ ગુજરાતી નહીં સમજતા, પણ આ ફિલ્મ વિશેની થોડી એક માહિતી એવી, કારણ કે ફિલ્મ સમીર નામની માહિતીનું ટ્રેલર જ્યારે જુએ છે લોકો તો એક મેસેજ એવો જાય છે કે 2008ને ઘટનાને ટાંકીને અથવા તો એની પર આધારિત આ ફિલ્મ જોવા મળી શકે છે। શું કહેશો આપ? હું એમ્ફેસાઇઝ કરીશ કે આ 2008ની ઘટના પર આધારિત ફિલ્મ નથી, એનાથી પ્રેરિત ફિલ્મ છે। એટલે 2008માં જે અમુક જે ઇન્સિડન્ટ્સ બનેલા એઝ અ ડોક્યુમેન્ટરી ફિલ્મ મેકર તરીકે મેં કેટલાક મારા કેમેરા પર લીધેલા અને કેટલાક એક્સપિરિયન્સ વિક્ટીમ સાથે વાત કરીને થયેલા, તો એ બધી વસ્તુઓને લઈને એક કાલ્પનિક વાત છે, આ કોઈ સત્ય ઘટના નથી, એટલે આ કાલ્પનિક વાત છે અને એક ઇનોસેન્ટ મુસ્લિમ છોકરાની વાત છે જે હૈદરાબાદમાં રહે છે અને પછી એને અમદાવાદ ઇટીએસ ગુજરાતી ઇટીએસ પકડીને અહીંયા લાવે છે અને પછી મૂળ તરીકે એનો યુઝ કરે છે અને છેલ્લે સસ્પેન્સ रिवील થાય છે। ओके सीमा जी, सबसे पहले आपसे मैं ये क्वेश्चन करना चाहूंगा, इस फिल्म के रोल के बारे में आपसे जानना चाहूंगा, लेकिन यथार्थवादी फिल्म के कैरेक्टर में आप ज्यादातर दिखे हैं और इस फिल्म से जुड़ाव किस तरह से हुआ आपका और आपने इसमें इंटरेस्ट क्यों रखा? ऐसी कौन सी खास बात जो आपको इस फिल्म की लगी? देखिए, यथार्थवादी पहले तो इसका जवाब दे देती हूँ कि मैं जैसे कि अभी फ्रीकी अली, हाँ बिल्कुल, और हाफ गर्लफ्रेंड इस तरह की फिल्म भी करती हूँ, बट झुकाव इस तरह के जो ना नियर टू रियलिज्म पे ज्यादा जाता है क्योंकि दिल के करीब होता है मेरे लिए। आई फील वेरी कंफर्टेबल। तो ये फिल्म वेरी ह्यूमन, बहुत ही रियलिटी के करीब है, भले ये पॉलिटिकल एक सस्पेंस थ्रिलर है जी, और पूरे परिवार के साथ आप इस फिल्म को देखने जा सकते हैं। परफॉर्मेंस वाइज बहुत सारे बहुत टैलेंटेड एक्टर्स हैं इसमें। डायरेक्टर हिमसेल्फ दक्षिण जी बहुत बहुत मेहनत करके, क्योंकि ही इज बेसिकली डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, बिल्कुल, हाँ। तो उस पे उनका जो एक होता है ना रियलिस्टिक टॉपिक पे वो काम करते आए हैं, तो ही कैन फील कि रियलिस्टिकली उसको कैसे प्रोजेक्ट करना है। तो उनके सालों की तैयारी थी इस फिल्म को लेके, जब मेरे पास ये स्क्रिप्ट आई तो सचमुच लगा कि आई कुड बिलीव दैट दिस कैन बी ए रियल स्टोरी, भले फिक्शनल है, हाँ बिल्कुल, तो बट इसीलिए काफी मतलब आई वाज एक्साइटेड। काल्पनिक है लेकिन लोगों को रियल स्टोरी जानने को मिलेगी इसके अंदर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको इवन परफॉर्मेंस लेवल पे भी सबके बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कोई रियल कैरेक्टर। ओके, आपके रोल के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दीजिए। मैं मेरे ख्याल से एक मेरे नजर से ना एक माँ, मेरे लिए इमेज आता है कि माँ जनरली आप अगर आपने खासकर अपनी हिंदुस्तानी फैमिली में, भले ये स्टोरी इटसेल्फ इज यूनिवर्सल स्टोरी, और माँ कहते हैं ना, आप जनरली उनको
मैं हमेशा सोचती हूँ, चाहे वो जो गैंग रेप में बच्चे शामिल होते हैं, हाँ, बिल्कुल, या टेररिज्म में शामिल होते हैं, कोई भी डिस्ट्रक्शन में जब भी शामिल होते हैं, हमेशा फैमिली में फादर का डिसीजन रहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, क्रिकेटर बनेगा। माँ हमेशा शायद सोचते हैं, मुझे ऐसा बिलीव है कि मेरा बेटा अच्छा इंसान बने। तो ऐसी माँ जब बेटा गलत जगह पे जाता है या गलत रास्ते पे है तो शी फील्स वेरी हर्ट। तो एक तरह से ना, ये जो देखो इस तरह के कोई भी डिजास्टर अगर होता है या गलत ऐसे अपने बच्चे होते हैं तो ये डिस्ट्रक्शन कुछ भी होता है तो इनोसेंट विक्टिमाइज्ड होते हैं। तो मदर इज सिंबल ऑफ एक तरह से इनोसेंट कैटेगरी के हैं या यूनिवर्सल मदर के रूप में है। तो मैं वैसे एक मदर हूँ जो जिसके सपने शायद यही है कि अच्छा इंसान बनना, नहीं तो तू मर जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल। सीमा जी, एक सवाल मुझे आपसे ये करना है कि एक स्क्रिप्ट पसंद करने के लिए या रोल पसंद करने के लिए क्या कुछ सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी रहती है? क्योंकि मैंने आपसे शुरू में जो यथार्थवादी कैरेक्टर के बारे में आपको बात करी, इसलिए मैं पूछना चाहूंगा। इस फिल्म में आपने बोला एक माँ का किरदार आपका है, लेकिन स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, रोल अच्छा होना चाहिए, रोल बड़ा होना चाहिए, क्या कुछ इसके देखिए, अगर आप देखेंगे कि बैंडिट क्वीन के बाद, हाँ बिल्कुल, खामोशी के बाद इतना बड़ा रोल तो मेरे पास नहीं आया। जी। इसके कारण फिर भी मैंने किया है। हाँ, बिल्कुल। और ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत खुश रहती हूँ अपने थिएटर के काम में, जी बिल्कुल, और बिजी रखती हूँ अपने आप को। पर जब मुझे, मैं दिल की बात सुनती हूँ तो मुझे जहाँ लगता है ना, मैं ऐसे कोई फॉर्मूला बना के नहीं चलती हूँ। मेरा दिल जो कहते हैं मैं वो करती हूँ। नहीं, कभी ऐसे सोच नहीं आती कि थिएटर है तो मैं बड़े रोल पे जाऊं और ज्यादा मिले तो अच्छा है? उसमें क्राइटेरिया आई एम श्योर पहले तो रहता है कि स्क्रिप्ट कैसी है। भले मेरा रोल बहुत बड़ा है, ऐसे रोल्स भी आफ्टर बैंडिट क्वीन मुझे, मेरे पास ऐसे डायरेक्टर्स ऐसे काम लेके आए कि शेखर कपूर बैंडिट क्वीन को कंप्लीट नहीं कर पाए। वी वांट टू डू अ कंप्लीट बैंडिट क्वीन फिल्म विथ यू, बहुत मोटे पैसे से, बट मेरे लिए मैंने हमेशा कहा नो थैंक यू। तो मैं इस मामले में क्लियर हूँ। आई डोंट एंजॉय रिपीटिंग माई सेल्फ रोल में। और स्क्रिप्ट में भी ना मैं वेरिएशंस ढूंढती हूँ, यू नो, कि स्क्रिप्ट जो है मेरे दिल को ऐसा लगे हाँ वेरी गुड स्क्रिप्ट, बट रोल भले छोटा हो चलेगा, बट व्हाट इज माई कंट्रीब्यूशन, बट दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर क्या कंट्रीब्यूट करता है उस फिल्म में। ये कैरेक्टर ना होने से चलेगा कि नहीं चलेगा? अगर चलेगा तो नहीं होने से चलेगा, तो ऐसे बहुत जरूरी होता है किसी भी कलाकार के लिए फेमस होना। बैंडिट क्वीन से सीमा बिस्वास बहुत फेमस हो गए, उसके बाद की जो ये सिलसिला रहा है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे ही जानते हैं कि सीमा बिस्वास यानी बैंडिट क्वीन, वो इमेज को आप निकालना चाहते हो या इसकी कोई कोशिश आपने की है कि दूसरी कोई पहचान मेरी बने सीमा बिस्वास के नाम से? देखिए, अगर इमेज को बरकरार रखने के लिए मैं तो, जैसे होता है ना कि मैं ऐसी उसी तरह के रोल्स लगातार करती जी, बट मैं लगातार वो रोल नहीं करने की कोशिश की। और मुझे याद है जब मैं बैंडिट क्वीन रिलीज नहीं हुई, जस्ट रफ कट हुई, तभी संजय लीला बंसाली ने कांटेक्ट किया और उन्होंने खामोशी की स्टोरी बताई। तो मेरे जो वेल विशर डायरेक्टर्स हैं उन सभी ने मना किया था मुझे कि मत डोंट डू इट बिकॉज यू विल बी स्लॉटेड एज मदर्स रोल इन बॉलीवुड। बट मैंने ना खुद अपने, जैसे मैंने बताया कि मैं दिल की बात सुनती हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि फिल्म रिलीज नहीं हुई, ठीक से कंप्लीट भी नहीं हुई, बट आई बिकेम फेमस बिकॉज ऑफ कंट्रोवर्सी। और मैं क्योंकि बीइंग ए थिएटर पर्सन है, मुझे ऐसा लगा आई वांट टू बी फेमस फॉर माय एक्टिंग, नॉट फॉर कंट्रोवर्सी, तो आई विल डू दिस फिल्म। ऐसे मैंने इसको किया था। एक सीमा जी, एक सवाल मैं आपसे इतना पूछना चाहूंगा कि इतने सालों के बाद, यानी ये सिलसिला आपका चलता रहता है, आपने थिएटर की ज्यादातर बात करी है, लेकिन किसी भी कलाकार के लिए कंट्रोवर्सी कितनी जरूरी होती है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। मेरे लिए जरूरी, ये बाई चांस कोइंसिडेंटली हुआ है, जरूरी बिल्कुल ही नहीं है। और कोई भी कलाकार, मुझे नहीं लगता कि कंट्रोवर्सी की वजह से काम में नहीं, एक थॉट प्रोसेस मैसेज लोगों में ये जाता है कि कलाकार जो है, अभी के माहौल की बात करता हूँ मैं आपको, क्योंकि डिफरेंशिएटर पूछना चाहता हूँ। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ, यू नो, कि मैं क्यों दूसरों को बदनाम, दूसरों को कहूँ कि वो ऐसे करते हैं। मैं जैसे करती हूँ, मैं बिलीव करती हूँ कि मेरे कंटेम्पररी हो चाहे मेरे से यंग जितने जनरेशंस हैं, ये है कि कंट्रोवर्सी नहीं, उनका काम पे फोकस रहता है। मैंने खामोशी में आपका रोल देखा है,
उसमें आप कुछ बोलते नहीं, लेकिन बहुत जबरदस्त एक्टिंग आपकी दिखी है। थैंक यू। इसमें आपने माँ का रोल किया है, क्या कुछ कठिनाई इसके अंदर लगी? क्योंकि आपने वो जो रोल कर दिया है तो उसमें बहुत बड़ी कठिनाई हो भी, तो भी आपने बहुत अच्छे से निभाया है। इसमें माँ का रोल निभाने के लिए आपको कोई दिक्कत या कठिनाई? क्या देखिए, स्टोरी इटसेल्फ इज सो स्ट्रॉन्ग जी, और काफी सारे अच्छे अच्छे कलाकार रोल्स में ना पोटेंशियल, मतलब एक होता ना, मैंने कि फुटेज पॉइंट ऑफ व्यू कहिए या उनको बैकग्राउंड ड्रॉप, मेरे अपने घर के अंदर जी, मोस्टली सीन है और विद इन लिमिटेड टाइम पे मुझे कंप्लीट मेरे उस मदर का दर्द, जो सब मैंने मदर बोला है, हर चीज को दिखाना है। जो मेरी हिस्ट्री, जो मेरा पास्ट क्या हो चुका है, मेरा आई लॉस्ट माई सन, मेरे गुस्सा बच्चे के लिए, जी, 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 या जो भी है ना, इस लिमिटेड पीरियड में आपको हर चीज दिखाना होता है, तो इट्स अ चैलेंज एज एन एक्टर। इतना इम्पोर्टेंट होता है कि फिल्म का मैसेज, लोगों में क्या जाता है कि फिल्म का मैसेज कैसा भी जाए, लेकिन एक कलाकार है, उसका एक रोल होना है, तो वो रोल पे अपने फोकस करना है बस। मैसेज कोई भी जाए, उससे कोई लेन देन नहीं होती कलाकार को, ऐसा मैं बोल सकता हूँ? ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम जब स्क्रिप्ट भी सिलेक्ट करते हैं तो उसमें ये है कि कंप्लीट स्क्रिप्ट में क्या बोलना चाहते हैं डायरेक्टर, क्या कहना चाहते हैं। नाउ ये फिल्म इज डायरेक्टर्स मीडिया, अल्टीमेटली क्या है, डायरेक्टर क्या मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं। वी आर लाइक इन फिल्म लाइक अ पपेट, बट एट द सेम टाइम एज एन एक्टर हमको विश्वास करके सिलेक्ट किया उन्होंने। सीमा जी, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं ये करना चाहूंगा। बहुत ऐसी फिल्में हैं जो विवाद से जुड़ी है, या फिर ऐसी फिल्म बनी है जो रियल में घटना बन चुकी है, जैसे अभी ये ब्लास्ट की बात कर रहे हैं हम, लेकिन आपने बोला ये प्रॉपर उस घटना पे आधारित नहीं है। लेकिन एक लास्ट में आपको मैं ये पूछना चाहूंगा कि इस फिल्म को लोग देखने क्यों जाए और क्या मैसेज इनको मिलेगा, और सीमा विश्वास को देखने के लिए जाने के लिए बात होती है जब, तो क्या मैसेज देना चाहोगे, और खास करके अहमदाबादियों को? देखिए, पहली बात तो ये पहली बार कंप्लीटली गुजरात में जी अपना डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स, टेक्नीशियंस और मोस्टली जो है मेजोरिटी जो है जो इस फिल्म को खड़ा करने में मदद किया है या आगे बढ़े हैं, वो है गुजरात में, और कंप्लीटली शूटिंग गुजरात में हुई। अहमदाबाद में मोस्टली 99.9% शूटिंग गुजरात में, अपना अहमदाबाद में हुई। तो ऐसे एक गुजरात के लोगों को खासकर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्यार होना चाहिए कि चलो हम देखने जाएंगे। फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए बहुत फिल्में ऐसे देखते हैं जो सुपर डुपर मेगा स्टार को देखने के लिए, तो यहाँ तो घर के लोग हैं, वन शुड गो। एंड ये दूसरी बात है, परफॉर्मेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लोगों को पसंद आएगा। स्क्रिप्ट इटसेल्फ इज सो स्ट्रॉन्ग एंड सो गुड एंड कंप्लीट, एक सस्पेंस थ्रिलर जो फैमिली के साथ सब लोग जाके देखना पसंद करेंगे। और स्टोरी है, देयर इज अ स्टोरी बिगिनिंग मिडल एंड, तो वन शुड गो एंड वॉच इट। ओके दर्शक મિત્રો, સપ્ટેમ્બર 8મી સપ્ટેમ્બરે સમીર ફિલ્મ રિલીઝ થઈ રહી છે. આ ફિલ્મને લઈને હજી પણ ઘણી વાતો કરીશું, પરંતુ અત્યારે સમય થયો છે એક બ્રેકનો, અને સીમા વિશ્વાસને ખાસ એવું કહેવા માંગીશું. ધન્યવાદ સીમાજી, આપની ચર્ચામાં ભાગ લે એટલે. થેન્ક યુ. અને દર્શક મિત્રો, ફરીથી મળીએ ફટાફટ એક નાનકડા વિરામ બાદ આ ચર્ચાને આગળ વધારીશું અને સમીર ફિલ્મને લઈને ઘણી બધી વાતો કરીશું અને અન્ય એક મહાનુભાવ સાથે પણ આપણે આ ચર્ચામાં જોડાઈશું. વિરામ બાદ ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે લોકમંચમાં. દર્શક મિત્રો, ચર્ચા આપણે આગળ વધારીએ છીએ સમીર ફિલ્મને લઈને, કે સમીર ફિલ્મની જે ચર્ચા આપણે કરી રહ્યા છે 8મી સપ્ટેમ્બરે રિલીઝ થવાની છે સમગ્ર ભારતની અંદર, અને તેને લઈને ચર્ચા કરી રહ્યા છે. વિરામ બાદ આપણી સાથે ચર્ચામાં આ ફિલ્મના મુખ્ય કિરદારમાં કામ કરી રહ્યા એવા કલાકાર અત્યારે ચર્ચામાં જોડાયા છે. સુબ્રત દત્તાજી, કે જેઓ ATSની ભૂમિકામાં જોવા મળી રહ્યા છે. सुब्रत जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में. बहुत बहुत धन्यवाद जी. सुब्रत जी, सबसे पहले तो इस रोल के बारे में आपसे सब लोगों ने पूछा है, लेकिन इस रोल में काम करने से आपको कैसा महसूस हो रहा है, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा. देखिए, जब मैं पिक्चर में अभिनय कर रहा था, जी महसूस या उसको एम्पैथाइज करना उस कैरेक्टर को उस दौरान हो रहा था. अभी तो इसको बारे में मैं रिलीज के लिए सबके सामने आ रहा हूँ जी. बट मुझे लगा कि इस पिक्चर के जरिए दक्षिण सर जो बताना चाह रहे हैं जी, बहुत ही मुझे उस चीज को बहुत बिलीवेबल और बहुत ही कन्विंस हुआ मैं, और इसलिए वो रोल मैंने किया. क्योंकि देखिए 26 जुलाई, नॉट ओनली दिस ब्लास्ट, 26 जुलाई ऐसा एक दिन है, 26 बाई 26,
तो जब याद कर 26 जुलाई 2008, तो मुझे बहुत मतलब एज एन आर्टिस्ट, एज ए कॉमन मैन मुझे बहुत बुरा लगता है। जी जी। और उसके ऊपर कोई फिक्टिशियस, हाँ बिल्कुल, कोई एक कहानी में मुझे एक किरदार जो मुख्य भूमिका दिया जा रहा है जी, और जो मेन 3 पिलर्स है जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यस तो बिल्कुल, मैं अपना सौभाग्य माना उस समय और मैंने पूरी तरीके से इस रोल को निभाने की कोशिश की, निभाया। बाकी तो ट्रेलर आप लोगों ने देख चुके हैं, पिक्चर 8 को देखेंगे। बिल्कुल। लेकिन ये आपने इसको पसंद करने की कोई खास वजह आपकी इस रोल को? सर क्या होता है कि हम इसके पहले जमीन पिक्चर में मैंने मिलिट्री कॉप का किया था, जिसमें मैंने नेगेटिव कैरेक्टर किरदार निभाया था, बिल्कुल, और शौर्य पिक्चर में पॉजिटिव था जी। बट समहाउ मुझे लगता है जब हम लोग कोई कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर को करते हैं, आर्मी का, पुलिस का, ये तो चीफ है, हम उसको ना एक वो दायरे में बांध देते हैं। इट इज ऑफिसर विद मुस्टैच, क्लीन क्लीन कट, यू नो, शॉर्ट हेयर, वेरी वेरी एक मतलब जो होते हैं जो सबके दिमाग में है। लेकिन इसको रियल और ह्यूमन बनाने के लिए मैं ऐसे नॉर्मल जैसे होता है, जैसे आप एंकरिंग कर रहे हैं, कोई पेंटिंग करते हैं, मैं उसको नॉर्मल बियर्ड दाढ़ी, बेचारा परेशान है मिस्टर देसाई, उसको एक लक्ष्य दिया गया है और उसके लिए उसका स्ट्रगल वो है, उनके उसका घर में प्रॉब्लम है, गर्लफ्रेंड है, और तो एक आम आदमी है वो, जी बिल्कुल, काम कर रहा है। इट्स नॉट ए इट्स नॉट ए कार्टून, इट्स नॉट लार्जर देन लाइफ, इट्स वेरी वेरी रियल एंड रूटेड आदमी है। मिस्टर देसाई को देखने की खास वजह इस फिल्म में, लोग जब पिक्चर में देखने जाएंगे तो? आई थिंक यू सी दिस पिक्चर के यूएसपी है कि गुजरात में बनी है। हाँ बिल्कुल। और गुजरात इस पिक्चर के जो समीर टीम, मैं इस टीम का हिस्सा हूँ, और इसमें 80% लोग गुजरात से हैं, अहमदाबाद से हैं। अहमदाबाद का प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, डीओपी, इवन हम जो चैनल में बैठे हैं, जी बिल्कुल, अहमदाबाद का है, पूरे गुजरात का है। सो इट्स ऑल्सो, आई एम वेरी वेरी प्राउड एज एन एक्टर। सो दिस इज द मेन यूएसपी एंड द अनदर यूएसपी। यस, हम कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल, इतने सारे बम ब्लास्ट। यस बिल्कुल, अहमदाबाद में, गुजरात में नहीं, पूरी दुनिया में। દક્ષિણ સવાલ આપનો હું એક ગુજરાતીમાં જ પૂછું છું કે આ ફિલ્મને લઈને 2008માં બનેલી ઘટના જેને આધારિત નથી, આપે કીધું એની સાથે સંકળાયેલી સ્ટોરી છે, આટલા સમય બાદ સમગ્ર ભારત દેશનો એક માહોલ છે, તેને લઈને પણ સવાલ આપને પૂછવામાં આવે કે આ સમયે રિલીઝ કરવી અને આ સમયે આ ફિલ્મ આવી, આ પ્રકારની ફિલ્મ બનાવી, આ ફિલ્મ વિશે થોડીક માહિતી હું આપને એ પૂછવા માંગીશ કે આનાથી કઈ રીતે વધારે પડતી કનેક્ટ નથી થતી 2008ના બ્લાસ્ટ સાથે? કારણ કે આપે જે ATSની વાત કરી, યાસીન નામના વ્યક્તિની વાત કરી છે ફિલ્મમાં, એના એક મિત્રની ધરપકડ થાય છે, આ બધી ઘટનાઓ અમદાવાદની જોવા મળી રહી છે, તો એને કઈ રીતે આપ ડિફરન્ટ કરશો, શું કહેશો? જો મેં જેવી રીતે તમારી સાથે વાત કરી એવી રીતે કોઈ પણ વાર્તા છે ને, એ વાર્તા કોઈક હવામાંથી નથી આવતી, એ આપણા યુનિવર્સમાં જ હોય છે હંમેશા. એટલે આપણી આજુબાજુ પેપરમાં વાંચીએ છીએ, મિત્રો સાથે વાત કરીએ છીએ, પુસ્તકોમાં વાંચીએ છીએ, ટીવી ઉપર જોઈએ છીએ, એટલે એમાંથી અમુક વસ્તુઓ તમે ગ્રાસ્પ કરો છો અને પછી તમે એક વાર્તા બતાવો છો. એટલે દરેક અલગ અલગ જે મણકા છે એ મણકા તમે જોડીને પછી એક વાર્તા તે બનાવો છો. આ એવી જ ઘટના છે. એટલે 2008માં એટલે મેં ડોક્યુમેન્ટરી ફિલ્મ મેકર તરીકે ડોક્યુમેન્ટ કરેલું. હું એટલા માટે કહું છું કે એ આધારિત નથી પણ પ્રેરિત છે, કારણ કે દાખલા કે ટિફિન બોમ્બ છે, તો ટિફિનની અંદર થયું, તો કોઈ બસ છે, બસને ત્યાંથી બસમાં થયું, કોઈ ચાની ટપરી છે એના ઉપર થયું, એમાં નાના 2 બચ્ચાઓ હતા. એટલે એ આખી ઘટનામાં જે નાના જે ઇનોસેન્સ મરી હતી, એમાં નાના બચ્ચાઓની જે મૃત્યુ થઈ, એક હિન્દુ છોકરી હતી અને એક હિન્દુ છોકરો હતું, મોહમ્મદ ઇસ્માઇલ નામ હતું એનું. એ જે થયું ને એને મને એવું લાગ્યું કે આ વાત જે છે, આ વાતની પાછળની આખી જે વાર્તા છે એ મારે દુનિયાને કહેવી છે. એ વાર્તા રિયલિસ્ટિક છે કે પછી એ વાર્તા પણ કાલ્પનિક આપણે કહી શકીએ? ના, વાર્તા બિલકુલ કાલ્પનિક જ છે. દાખલા તરીકે એવો કોઈ ઇન્સિડન્ટ નહોતો બન્યો કે હૈદરાબાદથી કોઈને પકડીને અહીંયા લાવીને ATS, ગુજરાતી ATS એમને મોલ બનાવ્યા. ઇટ્સ ફિલ્મ મેકિંગ છે ને, એ એન્ટરટેનમેન્ટનું મીડિયમ છે, એક વાત કહેવાનું મીડિયમ છે. એટલે તમારી એની અંદર એન્ટરટેનમેન્ટ, સસ્પેન્સ, થ્રિલર તમારે બધું લાવવું પડે તમારે. તો એ રીતે આખી વાર્તાને ગૂંથવામાં આવી છે, પણ એમાંથી અમુક જે વસ્તુઓ છે એ મૂકીને, ટેબલ પર મૂકીને તમે એક વાર્તાને તમે વણી રહ્યા છો. તો રિયાલિટી સાથે કશું લેવું નથી, રિયાલિસ્ટિક પરફોર્મન્સ છે. બહુ તમને એવું લાગશે કે આ કોઈ ફિલ્મ નથી, એમ આ કોઈક લો એંગલ થી ફ્લાઇંગ મારીને કોઈ કિક મારી રહ્યો છે, એવા પ્રકારનો કોઈ હીરો નથી ને એવા પ્રકારના કોઈ કેરેક્ટર્સ આની અંદર જે રિયલ લાઈફમાં આપણે જોઈએ છીએ, જે ઓફિસર્સને જોઈએ છે, એક મેચ્યોર્ડ જે રિલેશનશિપ, એક IPS કક્ષાનો ડેપ્યુટી ATS જે છે એની જે લવ એંગલ છે એ કેવી રીતે હોય અને કેવું મેચ્યોર્ડ પ્રેમ કરે કોઈને, એક પછી લઈને બાહુમાં લઈને ફરતો અને ગીત ના ગાતો હોય. એટલે આવું रियल लाइफ में थतू रहती है, वो रियलिस्टिक है फिल्म. ओके सुब्रत जी, सबसे पहले तो आपने बताया जैसे कि गुजरात की बात करी, गुजरात के मैक्सिमम लोग काम कर रहे हैं, अहमदाबाद में पूरी फिल्म जो शूटिंग हुई है ऐसा मुझे जानने को मिला है. जी.
क्या बोलना चाहोगे अहमदाबाद और गुजरात के बारे में, और खास करके इस दंगे की जब बात निकलती है तो लोग यही सोचते हैं कि दंगा नहीं होना चाहिए, दंगे से रिलेटेड कोई भी फिल्म बनती है तो उसमें भी कुछ मैसेज ऐसा जाएगा जो रियलिटी पे है, बेस नहीं है, तो ये लोगों की मानसिकता होती है। क्या उनको भी कहना चाहोगे? और साथ में इस गुजरात और अहमदाबाद में जब आपने काम किया इतने दिनों से, कैसा आप यहाँ पे महसूस कर रहे हो और कैसा लगा आपको अहमदाबाद और गुजरात में? मैं अंत से शुरू कर रहा हूँ जी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो मेरा तो एक मैं जगह जगह घूम के नाटक करता, अब आजकल तो नाटक करता था, एक्टिंग करता हूँ। आज जब मैं गुजरात में आता हूँ, अहमदाबाद में आता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि 1 बजे लड़कियां घूम रही है, तो मुझे इतना दिल से सुकून मिलता है। मुझे लगता है ये हिंदुस्तान के हर शहर में क्यों नहीं होता। आई एम वेरी वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन। गुजरात में पॉसिबल है, अब बाकी सारे स्टेटों में क्यों नहीं होता। तो शायद कुछ लोग अगर सुन रहे हैं, ये पॉसिबल होना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में। जी। सेकंड, गुजरात में शूटिंग करके बहुत अच्छा लगा। ये तो मेरा दूसरा घर हो गया। यस। मैं एक बेटी का बाप हूं, तो मुझे लगता है कि मेरी बेटी को अगर कॉलेज में डालना तो शायद मैं यहीं पे डालना चाहूंगा, वो फ्री घूम सके। यस। फिर अगेन मैं उसके साथ रिलेटेड, बट जहां पे ब्लास्ट का सवाल है, देखिए एक चीजें हैं, सोक्रेटिस ने कहा कि जो आम आदमी होते हैं दे डिस्कस ऑलवेज अबाउट पीपल। एवरेज पीपल जो होते हैं, तो एवरेज जो आदमी होते हैं तो दे ऑलवेज डिस्कस्ड अबाउट इवेंट्स, बट द इंटेलिजेंट पीपल जी they discussed about events. Okay. This film is about event. That is an accident. I think it's not an incident, it's an accident. जी। Now, there are 3 pillars in this film. Yes. One character is representing state, Okay. like me. हाँ। Jishan is representing जो state के खिलाफ का जो power है. जी, बिल्कुल। Another is Anjali, जो media. जी, मीडिया का हुआ। Now the role of media. Yes. एंड द रोल ऑफ जो स्टेट का पावर है, जो स्टेट के खिलाफ है, तीनों का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रिलेशंस, इसके बाद एक एक्सीडेंट होने के बाद इनका रोल क्या होता है, और एक्चुअली एक इट्स नॉट द इंडिविजुअल, यस, एंड ऑल्सो द आइडिया ऑफ टेररिज्म। ओके, इट्स नॉट टेररिस्ट, Yes, इट्स अ फिल्म अबाउट आइडिया ऑफ टेररिज्म। सो इट्स अ सवाल। सो और एक कहते हैं सोक्रेटिस साहब कि टू अंडरस्टैंड ए क्वेश्चन, यस, इफ यू अंडरस्टैंड ए क्वेश्चन, आपने तो आधा जवाब दे दिया, बराबर है, इट्स हाफ ऑफ एन आंसर। सही बात है। इस पिक्चर में वो सारी चीजें मिलेगी। इस चीज का सवाल का कोई जवाब नहीं है सर। जी जी जी। कि भाई टेररिज्म क्यों होता है, इसका बोलेंगे ये इसलिए होता है, वो बोलते उसके भी एक सपने हैं, बोलते सपने पूरे नहीं होते, ये सब बहुत सारे, लेकिन इसका कोई सीधा सवाल होता तो अब तक सब कुछ खत्म हो जाता। और शक्ति का संतुलन बहुत जरूरी है। ओके, तो यही हो रहा है पूरी दुनिया में। दिस इज द फिल्म, दिस इज द राइट फिल्म एट द राइट टाइम। यस। दक्षिण जी, एक સવાલ એ થઈ રહ્યો છે જે મીડિયાના રોલની વાત કરી, હવે આ એક એક્સપેક્ટ શું હશે મીડિયાનો, એ લોકો જોવા માટે ફિલ્મમાં આવશે? ATS ની વાત કરી, એક એ બી હું પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ પૂછું છું આપણે। બીજી બાબત એ પૂછવા માંગીશ કે જ્યારે આવા કોઈ પણ પ્રકારનો બ્લાસ્ટ કે દંગા પ્રસાદ થાય છે, જ્યારે એને કારણે એવું થાય કે આ કોમી જે ઝઘડા થતા હોય છે, એ ઝઘડાને કારણે ઘણા બધા લોકો એમાં ભોગ તો બન્યા હોય, મોતને પણ ભેટ્યા હોય, પણ એ સિવાયના પણ એમની સાથે સંકળાયેલા લોકો, એ ઘટનાથી થોડો પણ નાનો મોટો અનુભવ થયો હોય એવા લોકોની જિંદગીમાં ઘણા પરિવર્તન આવતા હોય છે। શું આ કોઈ એક્સપેક્ટ આપણે કહી શકીએ ખરી? જો આમાં છે ને ફિલ્મમાં એક રાયટ્સનું સીન છે, એટલે રાયટ્સ થતા નથી પણ રાયટ્સ થતા થતા એમાં અટકી જાય છે। એક નાનું બચ્ચું છે, એ નાનું બચ્ચું છે એ રાયટ્સને રોકે છે। એ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ આખું એક સીન છે એકચ્યુઅલી। એટલે ફિલ્મ કોઈ રાયટ્સના બેઝ ઉપર ફિલ્મ નથી, એટલે આખું સસ્પેન્સ થ્રિલર છે સરસ। પણ આમાં જે રાયટ્સમાં જે લોકો ભોગ બને છે એમાંનો એક જેવી રીતે મેં તમને કીધું કે મારા રિયલ લાઈફના કેટલાક એક્સપિરિયન્સીસ થયા, એમાંથી મેં એક આખી કાલ્પનિક વાર્તા કરી। હું બરોડામાં એક જગ્યાએ શૂટિંગ કરતો હતો ને એમાં એક ભાઈ હતા, એમને ગોળી વાગેલી કોઈક રાઇટ્સની અંદર। હું ધર્મની વાત નથી કરતો, કયા ધર્મના એ હતા, પણ એમના બા છે એ કંઈક સબ્જી જે છે સબ્જી વાંચી રહ્યા હતા ને એમાં એને કીધું, એમે પૂછ્યું કે હવે તો તમને ગોળી વાગી ગઈ, હવે તમને કંઈક થઈ જાય તમારા ઘરનું શું? તો એમણે કીધું કે ઉપરવાલા દેખેગા। અને પછી એમની બા જે છે, એમની બા એટલી બધી ગુસ્સે થઈ કે ઉપરવાળો અહીંયા નીચે નહીં આવે ભાઈ, ઉપરવાળો છે ને એ નીચે નહીં આવે, તારું ઘર નહીં ચલાઈ જાય, અમે બરબાદ થઈ જઈશું, ઘરમાં તારી 3 બહેનો છે અને કેવી રીતે ચાલશે એમ। એટલે કહેવાનો મતલબ એમ છે કે રાયટ્સ જેવી કોઈક વાત એ રાજકીય કોઈ પ્લાન હોય કે એનું કંઈ પણ હોય, એનું કોઈ પણ રીઝન હોય, પણ માણસ આમ જનતા છે ને, એ આમ જનતા જો એ વસ્તુને સારી રીતે સમજી શકે અને બહાર જવાનું ટાળે, ઠીક છે, અને પોતાના ઘરમાં રહે, તો શું છે આ વસ્તુ ફેલાય। એક મેસેજ તો આપ કહો છો કે આ ફિલ્મમાં મળી રહ્યો છે, પણ દક્ષિણજી એક મેં ટ્રેલરમાં જોયું છે, ખુશ્બુ ગુજરાતકીની પણ વાત કરી છે।
આ ખરેખર એક કટાક્ષ તરીકે લેવામાં આવ્યું છે આ ફિલ્મની અંદર કે પછી ખરેખર ખુશ્બુ ગુજરાતની પણ બતાવવાનો કોઈ પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો? મને એવું લાગે છે કે એના માટે તમારે ફિલ્મ જોવી પડશે કે અને પછી તમારે તમારા પર્સપેક્ટિવથી વિચારવું પડશે કે આ જે ડાયલોગ છે એ કટાક્ષમાં લેવામાં આવ્યું છે કે એને પ્રોપર પર્સપેક્ટિવમાં લેવામાં આવ્યું છે. જો હું એ કહી દઈશ તો તમારે પછી એ ડાયલોગ સાંભળવાની મજા नहीं आवे तुम्हें. ओके सुब्रत जी, आपसे मैं एक अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा. इस फिल्म को और सुब्रत जी को देखने के लिए लोग क्यों आए स्टूडियो में? अगर कोई भी इंसान जी अगर उसको लगे कि हिंदी फिल्म में एंटरटेन होना चाहते हैं जी, इसलिए उनको आना चाहिए. ठीक है. अगर कोई आदमी गुजरात से जो बिलोंग करते हैं हाँ, वो अगर गुजरात में बनी एक हिंदी फिल्म देखना चाहते हैं, उसके लिए बिलोंग करना चाहते हैं. Yes. और कोई भी आदमी को अगर थोड़े से भी दुख होता है, हाँ, दुनिया में कहीं पर भी बॉम्ब ब्लास्ट होता है, हाँ बिल्कुल, इनोसेंट आदमी जब उसका शिकार होता है, जी, जी, उसको जी, अगर लगता है कि ऐसा जो देख रहे हैं क्या सच यही है या ऐसा होता है, तो मुझे दर्द होता है. ओके, थोड़े से भी दर्द होता है ना, चुभता है. Yes. प्लीज कम एंड वॉच अवर फिल्म. ओके. There is no proper, sorry, जी, 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 there is no proper answer. Yes. But you will get a perspective of a director, and maybe you will get an answer according to your perception. બિલકુલ બિલકુલ. દર્શક મિત્રો, આ ફિલ્મ આપણી સમક્ષ 8મી સપ્ટેમ્બરે મૂકવામાં આવશે. આપ કયા ખૂણામાંથી જુઓ છો એના પર નક્કી થશે કે આ ફિલ્મનો મેસેજ શું છે. જેમ દક્ષિણજીએ કીધું એ પ્રમાણે કે આને કટાક્ષ તરીકે મૂકવામાં આવ્યો છે કે પછી ખરેખર ખુશ્બુ ગુજરાતની બતાવવામાં આવી છે કે કેમ, એક સોશિયલ મેસેજ છે કે કેમ, એક કોમ માટેનો મેસેજ છે કે કેમ, એ દરેક વ્યક્તિ પોતાના દ્રષ્ટિકોણથી જોશે અને ત્યારે ખ્યાલ આવશે. આશા એ રાખીશું કે આ ફિલ્મનો જે મેસેજ યોગ્ય આપવામાં આવી રહ્યો છે તે લોકો સુધી પહોંચે અને યથાર્થ સાબિત થાય તેવી પણ આપણે આશા રાખીએ છીએ. આ ચર્ચાને અહીંયા સમાપ્ત કરીએ છીએ. ચર્ચામાં દક્ષિણજી और સુબ્રતજી આપને ભાગ લે इसलिए आपका धन्यवाद. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ સો મચ. बहुत बहुत धन्यवाद. તો ફરી મળીશું દર્શક મિત્રો લોકમંચમાં એક નવા વિષય પર ચર્ચા કરવા માટે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.